Hallelujah. Today we are going to take a very important scripture and I pray that God will speak to us through that word. और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन सीखने वाले हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उसके द्वारा आपसे बात करे। Today we learn from the life of Jesus. आज हम यीशु के जीवन से सीखने वाले हैं। Amen. Amen. We're going to learn from the story of Lazarus. और लाजरस की कहानी से हम सीखने वाले हैं। So we'll open our Bibles. और हम बाइबल अपनी खोलेंगे। John chapter 11. यूहन्ना 11 अध्याय। सबको ये लाजरस और की कहानी पता है। लाजरस मर गया था 4 दिन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। Faith does not have 5 senses. तो विश्वास के पास 5 इंद्रियां नहीं है। Faith will not go through because it will believe in what they see. Okay. और क्योंकि वो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। We know the story of Lazarus. हम लाजरस की कहानी को जानते हैं। You know who Lazarus was, right? आप जानते हैं लाजरस कौन है? We'll all open John. There was a certain man who was sick, Lazarus, at Bethany, and in the town of Bethany, and Martha or Mary. He was the brother of Martha and Mary, right? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। They sent a word to Jesus saying that Lazarus is dead. Lazarus is very sick. Please come and to pray for him. और किसी ने तो कहा कि लाजरस बहुत बीमार है, कृपया करके आ जाइए उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन when Jesus heard what he said, लेकिन जब ही यीशु ने उसे सुना जो उसने कहा, this sickness is not unto death but for the glory of God. ये सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। That the Son of God may be glorified through it. कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Now Jesus को बुलाया गया but Jesus doesn't go there, okay, immediately, right? और यीशु को बुलाया गया लेकिन तुरंत उठकर यीशु वहां नहीं गया। Jesus was supposed to go but Jesus takes 2 more days to go. और यीशु को जाना था लेकिन वो और 2 दिन रुक के गया। In the meanwhile they get a news that Lazarus is already dead. तो उसी समय के दौरान उनको ऐसा समाचार आता है कि लाजरस की मृत्यु हो चुकी। So he's already dead. मतलब वो मृत्यु हो चुकी है उसकी। So Jesus saying no, he's just sleeping. तो यीशु कह रहा है नहीं वो सो रहा है। So Lord, Jesus is saying now, Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. So I'm glad for your sake that I was not there, that you may believe. और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो कि अब आओ हम उसके पास चले। This story is very long. Then Jesus goes there and on the way he finds Martha and then he tells Martha saying, Lord, why you were if you were here my brother would have not died. तो ये कहानी बहुत लंबी है। वो जाता है, मार्ग में मार्था मिलती है। मार्था कहती है प्रभु अगर तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। And then what happened is now then Mary comes. और बाद में मरियम आती है। Okay, then Jesus is saying, come on, let's go to the tomb. और यीशु कहता है चलो हम कब्र के पास चले। Now they are going to the tomb. अभी वो कब्र के पास जा रहे हैं। Now they are going to that cave. और उस गुफा के पास जा रहे हैं। So what does verse 39 say? I want you to just observe verse 39. और 39वां वचन क्या कह रहा है? मैं आपसे बोलती हूँ कि इस पर ध्यान लगाओ। अभी Lazarus had died कितने दिन हो चुके थे? 4 days. लाजरस मर के 4 दिन हो चुके थे। So what happens is now Martha is telling Jesus. और मार्था यीशु को बोल रही है, Lord, by this time there is a stench for he has been dead for 4 days. हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। What is faith? What these people are seeing? तो ये लोग क्या देख रहे हैं? Oh God, smelling. अरे प्रभु दुर्गंध आ रही Oh होगी। God, सड़ गया, स्किन पूरा सड़ गया है। और पूरा चमड़ी उसकी सड़ चुकी है। No way, nothing can be done now. कुछ भी हो नहीं सकता अभी। We also do that sometimes, right? हम भी तो ऐसा करते हैं कभी कभी। We go to the doctor. हम डॉक्टर के पास जाते हैं। Doctor will tell us that you have to go through this operation. और डॉक्टर कहता है आपको ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। And when we hear that only, और वो जब सुनते हैं डॉक्टर में से तो you have some problem with your creatinine or your kidney. और डॉक्टर कहता है कुछ किडनी के साथ क्रिएटाइन के साथ प्रॉब्लम है। तो what we do? तो हम क्या करते हैं? We by the time we think about those words only. और उन वचनों पर ही हम मनन करते रहते हैं। And we forget
the goodness of God. और हम प्रभु की भलाई को देखना भूल जाते We हैं forget the word of God only. और प्रभु का वचन ही भूल जाते हैं We just think about what the doctor said. और हम केवल वही ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला है, And what डॉक्टर we ने do क्या is बोला we है। come home and we believe what we see by faith, what we see. और विश्वास से हम क्या देखते हैं, Oh, my kidney is going to be removed soon now. तो अभी मेरी किडनी निकाल दी जाएगी बहुत जल्दी। By faith we see that, oh God, now I will be on the sick bed. और हम विश्वास से देखते हैं कि हम बीमार खटिया पे पड़े हैं। So instead of getting better, you're getting worse day by day. तो आप बेहतर होने की जगह दिन ब दिन और बदतर होते जाते हैं। And you tell 10 people to pray for you also. और बहुत सारे लोगों को आप बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। You see that there are so many stones that's increasing day by day. By psychologically, more of the time we are affected. और बहुत ऐसे बार होता है कि हम देखते हैं कि और पथरियां बढ़ती जा रही है और मनोवैज्ञानिक रीति से हम उसे बढ़ता हुआ करते हैं। Now here Martha is seeing and she's saying, Lord, 4 days is dead. और मार्था बोल रही है प्रभु 4 दिन हो गए उसको मर के And there will be a dirty stench inside, और Lord. अभी तो बहुत बुरी दुर्गंध आती रहेगी। But you know, I want to tell you, faith doesn't see this both eyes. और विश्वास इन दोनों आंखों से नहीं देखता। Hallelujah. हालेलुया। Faith has special eyes. विश्वास के पास खास आंखें हैं। You have special eyes. आपके पास खास आंखें हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because this eyes will look at natural things. और हमारी ये जो आंखें हैं वो स्वाभाविक बातों को देखेगी। This faith what we have in God और ये विश्वास जो हमको प्रभु पर है and His word, और उसके वचन पर है, it does not depend on our natural eyes. वो हमारे स्वाभाविक आंखों पर निर्भर नहीं है। Faith will say you're sick. और विश्वास कहेगा कि आप बीमार हो। Faith will say that you have no money in your account. और विश्वास कहेगा आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं। Correct? Your natural eyes, what you're seeing. I'm saying मतलब आपकी स्वाभाविक आंखें जो देख रही है But when चीजों you को। have faith in the Lord, लेकिन जब Jesus, आपका विश्वास प्रभु पर है, यीशु पर है, your natural eyes, your 5 senses will not be affected in तो any way. आपकी स्वाभाविक आंखें, आपके जो 5 इंद्रियां है उस पर कोई असर नहीं होगा। Faith will move mountains. विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। He says, Jesus is saying, our friend Lazarus is just sleeping. और हमारा मित्र लाजरस तो केवल सो रहा I है। just go and wake him up. मैं केवल जाता हूँ और उसको जगाता हूँ। That one is saying, Lazarus died 4 days हो गया प्रभु. और मार्था बोल रही है 4 दिन हो गए लाजरस को मरे। The smell will be terrible. तो दुर्गंध आती रहेगी उसके It अंदर must be से stinking. और वो बहुत ही बदबू रहेगी It must be stinking. और इतनी बुरी बदबू रहेगी। So this faith doesn't use even his nose to smell. तो ये विश्वास अपने नाक का भी सहारा नहीं लेता है सूंघने के This लिए। faith can't smell also anything. और ये Understood? नाक कुछ सूंघ भी नहीं सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding what I'm trying to tell you? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना This faith चाहती is हूँ? looking something. पूरा body सड़ गया है, everything, but that faith is not moved. और ये जो विश्वास है वो देख रहा है पूरी शरीर जो सड़ चुका है लेकिन उसका विश्वास हिला नहीं। Faith के पास faith is seeing that this body is stinking. और ये विश्वास देख रहा है कि ये शरीर सड़ चुका है Because these eyes are not natural, it's supernatural. पर उसकी आंखें स्वाभाविक नहीं लेकिन अलौकिक है। Somebody must have said, oh God, I touched this body यार, पूरा उसका skin भी पूरा सड़ रहा है. I touched this body. और मैंने तो उसके शरीर को छुआ है, उसका तो पूरा शरीर सड़ चुका है। Skin is breaking. तो चमड़ी पूरी फट रही है। I touched and I saw. No, मैंने no. तो छू कर देखा, There's no नहीं, hope. नहीं। There's no hope. कोई आशा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। You know, this faith will not even use hands. और ये विश्वास हाथों का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। Amen. 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 I'm trying to talk to you about that faith in the supernatural. मैं आपसे उस विश्वास के बारे में बात कर रही हूँ जो है अलौकिक विश्वास। This faith will not use the natural eyes. वो अपनी स्वाभाविक आंखों का इस्तेमाल नहीं करेगी। Faith will not even use the natural hands. तो जो विश्वास है वो स्वाभाविक हाथों का भी इस्तेमाल नहीं Faith will करेगा। not even smell. और विश्वास जो है वो सूंघेगा भी नहीं। Okay, this faith will not use eyes, ears, nose, tongue, nothing. और ये विश्वास जो है आंखों का, नाक का, जीभ का, कान का, किसी का भी इस्तेमाल But नहीं this करेगा। faith has a sixth sense. पर इस विश्वास की Come छठी on. इंद्रिय है। Faith always looks at the impossible.
तो विश्वास हमेशा असंभव को देखता है and says it is possible. और कहता है ये संभव है। Faith looks at the impossible विश्वास असंभव को देखता है and looks at and says it is possible. और कहता है कि ये संभव है। ओके, विश्वास हमेशा संभव को देखता है और कहता है कि संभव है। कहो, विश्वास असंभव को देखता है और कहता है कि ये संभव है। वो कहो फिर से, विश्वास हमेशा असंभव को देखता है असंभव को देखता और है कहता है कि संभव है। और कहता है कि ये संभव है। क्यों पता है? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियन 2 Corinthians 5:7 says we walk by faith and not by sight. दूसरा कोरिन्थियन 5:7 कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। If you start seeing things with your natural eyes, you cannot expect any miracles. और अगर आप केवल अपनी स्वाभाविक आंखों से ही देखते रहोगे तो कोई चमत्कार नहीं देखोगे। Some people when they worship God, they will only sing negative songs. रोते रहते, रोने के गाने गाते हैं। कोई लोग आराधना करते हुए हमेशा रोते हुए गाने मेरा गाते हैं। सहारा प्रभु, और कुछ नहीं, अभी मैं मर जाऊंगा। ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग, कठिन रास्ते हैं। वही दिखता है उनको, राइट? दे कैन सी लाइक दैट ओनली। दैट इज नॉट फेथ। तो वो विश्वास नहीं है। फेथ सीज दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और विश्वास कहता है मैं प्रभु की संतान हूँ। Whoever believes, Bible says in John 1:12 what it says. और यूहन्ना 1:12 में क्या कहता है वचन? Whoever who believes in him and receives him, he gave them the right to be known as the children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसका अधिकार दिया? क्या बनने का? संतान। Become the children of God means you're a child of God. मतलब आप परमेश्वर की संतान That हो। means he has given you authority to become the child of God. मतलब आपको अधिकार दिया गया है कि आप परमेश्वर की संतान बने। You have become the son of God. तो आप तो परमेश्वर के पुत्र बन You गए। are a daughter of God. आप परमेश्वर की पुत्री बन गए। You may be saying, oh God, I'm crying from 10 years. I'm praying and praying. प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। और प्रभु मैं 10 साल से प्रार्थना कर रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन है। प्रभु कहता है तू कब उठेगा? When will you stand up as a son of God? पर कब तू उठेगा और परमेश्वर के पुत्र के रूप में खड़ा होगा? Can you say that I am a daughter of God? क्या आप कह सकते हो मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ? I am a son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I have the highest influence. तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रभाव है। Can you say that? क्या आप कह सकते हैं ये? Do you know that you have to deny what you see with your natural eyes? तो अपनी स्वाभाविक आंखों से जो देखते हो उसे नकारना है। You may be seeing lot of debts and problems, right? और आप बहुत सारे उधारी और बहुत सारे समस्याओं को देख रहे हैं। Getting out of one debt, getting into another debt. एक उधारी से आप निकलते हो दूसरी उधारी में गिरते हो। Getting out of one problem, getting into another problem. एक समस्या से बाहर निकलते हो दूसरे समस्या में गिरते हो। Seeing this proposal, it is not working out. ये प्रस्ताव देखते हो उसमें कुछ काम नहीं हो रहा I'm है। seeing at least 10-20 proposals, but शादी नहीं हो रही है। 10-12 प्रस्ताव देख चुके लेकिन शादी ही नहीं हो रही है। What are you seeing? तो आप क्या देख रहे हो? Whenever you have a defeat in your life, जब कभी आपके जीवन में आप हार देखते हो। I have seen people 1-2 बार they see defeat. और मैंने लोगों को देखा है 1-2 बार अगर वो हार गए अब उसके बाद they will be so negative. उसके बाद इतना नकारात्मक हो जाते First only they will say that ऐसा होता है मेरे साथ में, that conclusion हो जाता है। It always happen like this with my life. Yeah, that then life is in the power of your tongue. तो मृत्यु और जीवन तो आपके मुख में है। What are you speaking? तो आप क्या बोल रहे हो? You are speaking death. क्या आप मृत्यु बोल रहे हो? Choice is in your hands. चुनाव आपके हाथों में God has है। kept a choice to प्रभु choose life ने or death. आपके हाथों में रखा है कि आप क्या चुनेंगे? Choose जीवन blessing चुनेंगे कि मृत्यु चुनेंगे? or choose curse. श्राप चुनेंगे या आशीष चुनेंगे? You have to deny to see in the natural. तो आपको नकारना है स्वाभाविक आंखों से देखने को। Okay? You have to Amen. deny. आपको जो दिखता है वो नहीं देखना है, असंभव को संभव होते हुए देखना है। Amen. Amen. You have to see the Amen. impossible being possible. Hallelujah. Amen.